Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are preparing pretty well for the CSIR examination. So there is only a very few days left for the CSIR 2024 examination. So I hope you are dedicating all of your time for the preparation and you are preparing theory as well as you are also practicing the questions. Because अगर आप MCQs प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री तरीके से नहीं कर रहे. अगर आपका प्रिपरेशन में अगर MCQ प्रैक्टिस आप बहुत कम कर रहे हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आप प्रॉपरली आंसर नहीं कर पाएंगे जो भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे. सो द टिप इज़, भले आप थोड़ा थ्योरी कम पढ़िए, थ्योरी थोड़ा सा कम होगा तो इट विल बी ओके, बट MCQ जो है वो आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना है. बिकॉज जितने टाइप के आप वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एंड ऑल्सो क्वेश्चन सॉल्व करने से वो माइंड में ज़्यादा बैठता है एज़ कम्पेयर टू ओनली थ्योरी पढ़ने से. सो आज के इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एंड उससे रिलेटेड जो सब्जेक्टिव टॉपिक्स है वो भी डिस्कस करेंगे. सो प्लीज़ वॉच टिल द एंड. एंड ऑल्सो एज आई हैव ऑलरेडी मैंशन कि इसी वीडियो में 3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसके आंसर्स आपको प्रोवाइड करने हैं. जो सबसे पहले आंसर देगा दे विल गेट एन एक्स्ट्रा बेनिफिट फ्रॉम माई सेल्फ. एंड ऑल्सो आपको ये तीनों क्वेश्चंस ढूंढने हैं कि मैंने कहाँ डाले हैं एंड जो सबसे पहले 3 कैंडिडेट्स आंसर करेंगे आई विल प्रोवाइड देम अ वेरी वंडरफुल बेनिफिट. And also, if you like my efforts, hit the like button and subscribe my channel for more such videos. So this is the question 1 of today's video. And this question is very common if you are appearing for CSIR as well as SET. ये question जो है वो बहुत बार पूछा जाता है. So the question is about different enzymes involved in the replication process, replication of DNA. So this is frequently asked that what is the role of DNA polymerase 1, DNA polymerase 3, DNA ligase as well as the DNA G. So you have to match the column A with the column B. So मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाला था जिसमें I have mentioned so many important match the column format questions. So if you haven't watched that video, I will provide the link or I will tag it here so you can watch it out. Because the match the following questions are directly the most important question and from a single question you are preparing for part B as well. because उसमें 4 options होते हैं and 4 options के लिए 4 scope बन जाते हैं कि वो B section में individually आ सकते हैं. So practice a lot and let's see the answer of this question. So you must be aware about the role of primase. In my previous video, I have already provided the enzymes important for the DNA replication as well as the DNA repair. I will highly request to watch the previous video because एक दूसरे से connected है. हर एक वीडियो में ये चीज़ें repeat मैं नहीं कर सकती because it will be unnecessarily long. So I will request कि आप previously video देखा कीजिए ताकि आपको पता चले कि किस वीडियो में क्या क्या topics आपको बताया गया है. So the role of primase is to generate RNA primers, so to start the DNA replication process, and the DNA G act as primase. So first का जो आंसर है वो होगा DNA G. Now इसके अलावा आप इससे बहुत फेमिलियर होंगे seals nick in the daughter DNA strand. जब भी बात आता है चाहे वो DNA रिपेयर हो या फिर DNA रेप्लिकेशन हो, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सीलिंग द गैप्स इज द DNA ligase. सो DNA ligase अगेन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में उसका रोल क्या होता है? इट सील्स द गैप एंड ऑल्सो इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इट इज़ नोन एज द मॉलिक्यूलर ग्लू बिकॉज इट स्टिक्स बैक द टू रिस्ट्रिक्टेड और द रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन के बाद जो फ्रैगमेंट्स जनरेट होते हैं उसे ये ज्वाइन करता है थ्रू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. तो DNA ligase होगा इसका आंसर. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग DNA polymerase possess 5' to 3' exonuclease activity. So it is the DNA polymerase 1 which possess this activity and the synthesis of DNA by moving along the parent strand in the 3' to 5' direction. So who does it? So the DNA polymerase 3 does it. Now let's move to the key points. So the DNA G is a primase that generates short sequence of RNA known as the primers. And the DNA polymerase 3, so it synthesizes the DNA by moving on the parent strand in the direction 3' to 5'.
So you have to remember this, that the DNA polymerase 3 runs in the 3' to 5' direction to synthesize the new daughter strands. Now the DNA polymerase 1, so it possesses the 5' to 3' exonuclease activity that allow it to remove the RNA primers from the replicated daughter strand. 5' से 3' तक ये क्या करता है, ये शो करता है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी. And the DNA ligase, as I have already mentioned, it is responsible for sealing the nicks in the DNA. So ये सारा जो पॉइंटर्स है वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप सेट एग्जामिनेशन दे रहे हैं या फिर CSIR या फिर गेट. सो इन सब पॉइंटर्स से आप इजीली आंसर पिकआउट कर सकते हैं. Now again, next topic that is very much important. In my previous video I have already mentioned the gel filtration chromatography or SEC, that is size exclusion chromatography. But in this video we will discuss the antibody affinity chromatography or basically the affinity chromatography, because it is the most important one and most commonly used, and in the CSR also question will be framed from this topic. So the diagram depicts the affinity chromatography. So let's work out the theoretical part or the pointers related to the affinity chromatography, and then we will learn through this diagram, and also we will solve some important questions related to the affinity chromatography to clear your concepts. So in the affinity chromatography, it is based on the ability of protein to bind specifically to the molecule based on the affinity with the molecule. So जो affinity chromatography है, शब्द से ही पता चल रहा है affinity. So इसमें क्या होता है, इसमें स्पेसिफिक बाइंडिंग्स के थ्रू हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को सेपरेट आउट करते हैं. ये हाईली स्पेसिफिक होता है बिकॉज कोई भी मॉलिक्यूल, सपोज एक मॉलिक्यूल ऐसा है, दिस इज़ द मॉलिक्यूल, एंड अगर हम रिसेप्टर ऐसा लगा रहे हैं तो ही ये जाके इसमें बाइंड करेगा. सपोज अगर ये हमारा मॉलिक्यूल है सर्क्यूलर और रिसेप्टर इसका है ऐसा, तो क्या ये बाइंड होगा? नो. या फिर अगर ऐसा रिसेप्टर है तो क्या बाइंड होगा? ये किस में बाइंड होगा? 1 2 3 में से इसका जैसा शेप है कॉम्प्लीमेंट्री, ये बाइंड होगा अपने से कॉम्प्लीमेंट्री शेप वाले में, यानी इसमें बाइंड होगा. सो लाइकवाइज एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इज हाईली स्पेसिफिक एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द स्पेसिफिसिटी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन दी जो मोबाइल फेज़ है और जो हमारा स्टेशनरी फेज़ है, उनके बीच में इंटरेक्शन के बेसिस पर होता है. एंड देयरफॉर इट इज़ हाईली स्पेसिफिक. कोई भी मॉलिक्यूल किसी से भी इंटरैक्ट नहीं कर सकते हैं अनलेस इट शोज हायर एफिनिटी विथ इट्स काउंटर पार्ट. सो यही मैं समझा रही थी, ये सेकेंड पॉइंट, दैट इट इज़ अ टेक्निक in which the ligand molecule that binds to the protein of interest are covalently attached to the beads used for the column. Now, ligands can be enzyme, substrate or other molecule that binds the specific protein. यानी जिस भी प्रोटीन को हमें सेपरेट आउट करना है उसके ऑपोजिट हम लिगैंड लेते हैं. जिस भी प्रोटीन को, प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट जो भी है हमारा, उसके ऑपोजिट हम क्या लेते हैं? लिगैंड. अब ये लिगैंड क्या क्या हो सकता है? लिगैंड कैन बी एन एंजाइम, कैन बी अ सबस्ट्रेट और अ मॉलिक्यूल. लेकिन वो कैसा होना चाहिए? वो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, वो एक ऑपोजिट काउंटर पार्ट होना चाहिए. यानी हमारा जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है वो लिगैंड से जाके बाइंड हो जाए सो दैट इट विल बी सेपरेटेड आउट, एंड दिस इज नोन एज द एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी. सो इट इज़ अ वाइडली यूज्ड. एंड एंटीबॉडी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी जो है उसमें क्या यूज़ किया जाता है? अटैच्ड लिगैंड जो है, जैसे कि नाम पता चल रहा है, एंटीबॉडी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी. द लिगैंड इज एन एंटीबॉडी दैट इज स्पेसिफिक फॉर द डिजायर्ड प्रोटीन. सो अब डायग्राम से समझते हैं. सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी कि यहाँ पे ये रेड वाला जो प्रोटीन है, इट इज़ द प्रोटीन रिकग्नाइज्ड बाय द एंटीबॉडी. यानी ये जो प्रोटीन है वो ही रिकग्नाइज कर सकता है ये एंटीबॉडी. यानी जो एंटीबॉडी है दैट इज एक्टिंग एज ए लिगैंड हैज़ अ साइट फॉर द बाइंडिंग ऑफ ओनली दिस रेड प्रोटीन एंड नॉट द ब्लू वन. सो आप यहाँ पे देखिए जूम्ड वर्जन में ये हमारा है लिगैंड, ये ब्लू वाला, ये क्या है? एंटीबॉडी है. एंटीबॉडी के पास एफिनिटी किसके लिए है? रेड मॉलिक्यूल के लिए, नॉट फॉर द ब्लू वन, नॉट फॉर द ब्लू प्रोटीन. सो इसमें रेड वाला क्या हो रहा है? बाइंड हो जा रहा है, एंड ब्लू वाला क्या हो जा रहा है? एलिमिनेट हो जा रहा है. सो जब ये कॉलम में गया है, सो इन दिस कॉलम यू कैन सी जब ये एंटीबॉडी की एफिनिटी रेड प्रोटीन्स के लिए है तो ब्लू विल बी इल्यूटेड आउट. यू कैन सी हियर, तो ब्लू सबसे पहले क्या हो जाएगा? इल्यूट आउट हो जाएगा. फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है,
फर्स्ट जो इल्यूशन होगा वो होगा ब्लू वाले का, एंड उसके बाद में सम अदर अनवांटेड प्रोटीन्स अगर उसमें कुछ होगा तो जो बाइंड नहीं होगा, एंड द लिगैंड विच इज शोइंग हायर एफिनिटी विद द प्रोटीन विल बी इल्यूटेड लास्ट एज द साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी. जितने छोटे होते हैं प्रोटीन का साइज, जितने छोटे होते हैं मॉलिक्यूल्स टू बी सेपरेटेड दैट आर इंसर्टेड इनटू दी, वो इंट्रैप हो जाते हैं किसमें, बीड्स में, एंड वो लेटर ऑन इल्यूट होते हैं. लाइकवाइज जिस भी प्रोटीन का एफिनिटी ज़्यादा होगा लिगैंड के साथ, बीड्स के साथ, वो क्या होगा, वो लेटर ऑन इल्यूट होगा. सो थर्ड नंबर में हमारा इल्यूट आउट हो रहा है कौन सा, रेड वाला प्रोटीन, बिकॉज इट हैज़ दी हायर एफिनिटी, यानी वो बहुत ज़्यादा हाईली इंटरैक्शन शो कर रहा था किससे, हमारे लिगैंड से. सो दिस इज़ द केस ऑफ द एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हम लिगैंड जो लेते हैं, इट कैन बी एंजाइम, इट कैन बी सबस्ट्रेट और इट कैन बी एंटीबॉडी. अगर एंटीबॉडी ले रहे हैं तो उसका नाम क्या पड़ जाता है, एंटीबॉडी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, हायर एफिनिटी विद द लिगैंड, लेटर इज द इल्यूशन, यानी सबसे लास्ट में वो आएगा, सबसे लास्ट में पीक उसका दिखेगा जिसका सबसे हायर एफिनिटी है. ऑपोजिट आपको याद रखना है. इफ यू आर क्लियर विथ योर कॉन्सेप्ट देन आंसर द फॉलोइंग. सो द क्वेश्चन इज, what type of interaction happens in an affinity chromatography between a protein and a ligand? So what type of interaction is there in a protein and a ligand? So is it a covalent bond, non-covalent bond, ionic plus covalent interaction? So it is the non-covalent interaction. It means it is the weak interaction that is in between the protein and a ligand molecule. So जो interaction रहता है affinity chromatography में protein और ligand में, वो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है, सो दैट इट कैन बी सेपरेटेड आउट विद डिफरेंट इल्यूशन बफर्स. एंड जो इंटरेक्शन होता है लिगैंड और मैट्रिक्स के बीच में, दैट इज कोवेलेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन. एंड दिस क्वेश्चन इज सो मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है. यहाँ पे मैं डायग्राम से समझाती हूँ. सो नाउ सी, दिस इज द लिगैंड मॉलिक्यूल, दिस इज द लिगैंड, एंड लिगैंड क्या है यहाँ पे, एंटीबॉडी है. जैसे कि मैंने बताया, तो ये जो एंटीबॉडी है ये एफिनिटी शो कर रहा है ये रेड प्रोटीन के साथ. यहाँ पे हमने देखा था प्रोटीन रिकग्नाइज्ड बाय द एंटीबॉडी, एंड ब्लू वाले को ये रिकग्नाइज नहीं कर रहा था. सो ये जो बाइंडिंग होती है किसके बीच में, लिगैंड के बीच में, एंड प्रोटीन टू बी सेपरेटेड आउट, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, इनके बीच में वीक इंटरेक्शन होना चाहिए, वीक इंटरेक्शन. अगर वीक इंटरेक्शन या नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन नहीं होगा, अगर मान के चलिए कोवेलेंट इंटरेक्शन, दैट हाउ इट विल बी सेपरेटेड आउट आफ्टर द इल्यूशन. अगर इल्यूशन हो भी जाएगा तो वो किसके साथ में आएगा, वो लिगैंड के साथ में ही बाइंडेड रहेगा. सो हमें तो अपना प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, हमें लिगैंड की ज़रूरत नहीं है. सो फॉर दिस रीज़न देयर इज़ एन नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट दिस बीड, ये जो बीड है या फिर जो लिगैंड है वो मैट्रिक्स में कैसा रहता है, कोवेलेंटली. अगर नॉन कोवेलेंट रहेगा तो क्या होगा, वो तो ईजिली निकल जाएगा, इसीलिए उसमें क्या रहता है, कोवेलेंट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. सो आई होप दिस विल बी क्लियर्ड फॉर ऑल ऑफ यू. नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी डायरेक्टली आस्क इन दी CSIR C सेक्शन. CSIR के C सेक्शन में ये क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आ सकता है बिकॉज दिस इज एन एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन. So the question is, for an application where you require a sample of your target protein at high purity, so what it would be a good purification strategy? Assume that your starting point is E. coli cells in which the target protein is fused to an affinity tag has been overexpressed. यानी यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी गई है कि हमें जो प्रोटीन है उसे अज्यूम ये करना है कि वो जो है उसमें एफिनिटी टैग है और वो कहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है, इट इज़ एक्सप्रेस इन दी ई कोलाई सेल्स. सो यहाँ पे कौन सा आप हाईएस्ट प्योरिटी के लिए कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे कि आपको जो प्रोटीन है इट विल बी ऑफ हाईएस्ट प्योरिटी. सो अगर आप थोड़ा सा स्मार्टर हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया लगाने आता है क्वेश्चंस में, तो यहाँ पे प्रोटीन की जो बात की गई है, यहाँ पे प्रोटीन का कोई नेचर नहीं बताया गया है कि वो जो प्रोटीन है वो हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज ज़्यादा है उसमें, या एसिडिक है या बेसिक है. तो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन में कुछ काम नहीं होगा, यानी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन वाला क्रोमेटोग्राफी इट इज़ फॉर द हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल. तो आप डायरेक्टली इस ऑप्शन को एलिमिनेट आउट कर सकते हैं. एंड सिर्फ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द हाईएस्ट प्योरिटी. एक आध दो स्टेप्स और लगते हैं सो दैट इट विल बी ऑफ हाईएस्ट प्योरिटी. सो ये भी नहीं हो सकता. अब बचा ये एंड सी, ए और सी में से आपको चूज़ करना है. सो affinity chromatography followed by ion exchange and then followed by SEC is the correct way of purifying a protein
to get the highest purity? So the correct answer of this question is affinity chromatography. So the affinity chromatography is satisfactory to get the purest protein, but if we add an extra step, so it will increase the purification profile of that particular protein. So it can be ion exchange chromatography followed by the size exclusion chromatography. And also remember कि अगर हम बहुत सारे स्टेप्स लगाते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए, सो जो ईल्ड है वो डिक्रीज आउट हो जाता है. कोशिश ये की जाती है कि ऐसा स्टेप लिया जाए कि 1 से 2 स्टेप में ही हाईएस्ट प्योरिटी वाला प्रोटीन अचीव हो जाए, सो दैट हमारा जो प्रोटीन का ईल्ड है वो लॉस मत हो. बिकॉज अल्टीमेटली वी वांट अवर प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट. अगर हम बहुत प्यूरिफाई करते गए नंबर ऑफ टेक्निक्स लगा के, नंबर ऑफ प्यूरिफिकेशन स्टेप्स लगा के, सो अल्टीमेटली जो ईल्ड आएगा वो बहुत कम आएगा. सो वी डोंट वांट दैट. सो फॉर दैट हमेशा क्या यूज़ किया जाता है, 2 मेथड को यूज़ किया जाता है, 2 या 3 लिया जाता है. एंड 2 या 3 भी तब लिया जाता है जब हमारा प्रोटीन जो है वो बहुत ही इम्प्योर है. विच ऑफ द क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज एक्सट्रीमली स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ सेपरेशन? ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था. इट इज़ द एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी विच इज़ हाईली स्पेसिफिक बिकॉज इसमें लिगैंड होता है विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू द प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट. वो उसमें बाइंड तभी होता है जब उसके लिए स्पेसिफिक होता है. सो इट इज़ द एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी विच इज़ एक्सट्रीमली स्पेसिफिक for the separation of protein of interest. Now next question, and this is also the important question which can be asked in the CSIR B or either C section. Now the question is, which of the following is an equilibrium method that can be used to accurately determine the DNA protein dissociation constant? यानी आपको indirectly ये पूछा गया है कि which of the following technique is used for the detection of DNA protein interaction. क्योंकि DNA protein interaction होगा तभी वो डिसोसिएट भी होगा, तो आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट कौन एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकता है ये पूछा गया है. सो इट इज़ द DNA footprinting that is used to analyze the protein and DNA interaction. प्रोटीन और DNA के बीच का इंटरैक्शन जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू दी DNA फुटप्रिंटिंग. सपोज कि ये हमारा DNA है, ये हमारा DNA है, एंड आपको पता करना है कि हमारा कोई प्रोटीन है. सपोज कि ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन इंटरैक्ट कर रहा है इस DNA से. सो DNA फुटप्रिंटिंग आपको ये बता देगा बाइंडिंग साइट, यानी कि ये जो प्रोटीन ऑफ है एक्सटर्नल प्रोटीन, ये कहाँ पे बाइंड है DNA पे, यानी एग्जैक्ट बाइंडिंग साइट जो है वो प्रिडिक्ट करता है DNA फुटप्रिंटिंग. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 फॉर द क्विज दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड अबाउट. सो ये क्वेश्चन 1 है, यानी कि इस कॉलम 1 में आपको कुछ प्रोसेसेस दिए गए हैं एंड द फोर्थ कॉम्पोनेंट इज मेंशन्ड इन कॉलम 2. सो यू हैव टू आंसर दैट कौन सा जो प्रोसेस है वो किस टाइप की फूड में देखने को मिलता है. सो दिस इज द क्वेश्चन 1 ऑफ द क्विज सीरीज आई हैव मेंशन्ड अबाउट कि जो सबसे पहले आंसर देगा उसका ये सबसे पहला क्वेश्चन है. सो कमेंट बिलो आंसर, एंड ऑल्सो आपको करेक्ट आंसर क्यों लग रहा है आपको ये भी बताना है. जितने कम वर्ड्स में आप बता पाएंगे उतना ही अच्छा है, एंड मैं इन सारे ही क्वेश्चन का आंसर कल की वीडियोज़ में बताऊंगी. नाउ दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द क्विज. ये क्विज का सेकेंड क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको, एंड ये प्लांट फिजियोलॉजी से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. और ये सेकेंड नंबर है, एक और क्विज मैं दूंगी, सो आप इनको इन तीनों ही क्वेश्चन का आंसर देना है. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द क्विज आई एम मेंशनिंग अबाउट. सो आपको इसका आंसर देना है. एनिमल्स हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैच करना है एंड करेक्ट आंसर आपको प्रोवाइड करना है. सो दिस इज द थर्ड, एंड इन तीनों क्वेश्चन का आंसर मैं कल के वीडियो में बताऊँ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज, विद इन द न्यूक्लियस इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स आर थॉट टू ऑक्यूपाई डिस्क्रीट टेरिटरीज. Which of the following is most likely to promote this segregation? Nuclear lamina, nuclear pore complex, nuclear matrix or scaffold, or intermediate fibers? So it is the nuclear matrix or the scaffold which is responsible for the occupying the discrete territories or the discrete location of the chromosomes.
Now one more question which is very much important, which is related to the RNA silencing. So during siRNA mediated gene silencing within the Homo sapiens cell, the RNA induced silencing complex, that is abbreviated as RISC, and that is read as RISC complex. So you have to mention that which of the following protein arrangement is a part of RISC. So it is the Dicer1, TRBP and AGO2 that are the protein arrangement of the RISC complex. Now what is this? So firstly, let me explain the different pointers related to this question. So siRNA stands for small interfering RNA. यानी siRNA का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंटरफेरिंग RNA and it is a class of double stranded RNA and it is a double stranded RNA. ये एक डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है जो कि यूजुअली कितने बेस पेयर्स का होता है? इट इज़ अबाउट 20 to 24 बेस पेयर्स का होता है that act in the RNA interferencing pathway by interfering with the expression of genes with complementary nucleotide sequence to that of the siRNA, inducing the mRNA degradation. यानी जो siRNA है वो RNA interferencing pathway में काम करता है एंड वो कैसे काम करता है? इट इंटरफेरेंस यानी क्या होता है? इट इंटरफियर्स, यानी जो जीन्स का जो कॉम्प्लीमेंटैरिटी है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का siRNA से जो ऑपोजिट होता है उनसे ये इंटरफियर करता है एंड देयरफॉर इट इंड्यूसेस द mRNA डिग्रेडेशन. तो ये रोल होता है siRNA का, यानी siRNA डिराइव्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द एक्सोजीनस डबल स्ट्रैंडेड RNA प्रिकर्सर इंट्रोड्यूसिंग इनटू द साइटोप्लाज्म through, for example, viral infection or experimental transfection. These longer double-stranded RNA are cleaved by enzyme dicer. Enzyme dicer क्या करता है? ये double-stranded RNA को cleave करता है, which is a member of RNA's 3 family endonucleases to produce shorter, small interfering RNA duplexes of about 21 to 25 nucleotide. यानी on an average 20 to 24 nucleotide length का, यानी dicer cleave कर देता है containing a 5' monophosphate group, 3' dinucleotide overhang. So ये कैरेक्टरिस्टिक होता है हर डबल स्ट्रैंडेड RNA का, यानी 5' पे फॉस्फेट ग्रुप होगा एंड 3' पे डाइन्यूक्लियोटाइड ओवरहैंग होगा. एंड एक मैमिलियन ऑर्थोलॉग है डाइसर 1 that contains 1 double stranded RNA binding domain, that is the DSRBD, and 2 RNAs 3 domains. Their spatial arrangement ensures that a double-stranded RNA is cleaved into siRNA duplexes of a consistent length. Dicer1 is aided by the double-stranded RBD cofactor TRBP working in conjunction with AGO2. यानी जो Dicer1 है उसमें एक डोमेन जो होता है वो होता है डबल स्ट्रैंडेड RNA बाइंडिंग डोमेन होता है एंड जो 2 होते हैं वो RNAs 3 डोमेन होते हैं. और इनका स्पेशल अरेंजमेंट ये इंश्योर करता है कि जो डबल स्ट्रैंडेड RNA है वो क्लीव हो जाए किसमें? siRNA डुप्लेक्स में. और जो इसका लेंथ है कितना? 20 to 24 बेस पेयर्स. और जो Dicer1 है इट इज़ एडेड बाय द डबल स्ट्रैंडेड RBD कोफैक्टर. और AGO2 का रोल क्या होता है? AGO2 और द ergonaute2 विच इज़ आइडेंटिफाइड एज अ पार्ट ऑफ RISC कॉम्प्लेक्स. ये RISC कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट है. सो ये जो ergonaute प्रोटीन होता है AGO2, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनवाइंडिंग ऑफ द siRNA. ये siRNA को अनवाइंड करता है एंड ऑल्सो इसमें से एक सेंस स्ट्रैंड होगा और एक पैसेंजर स्ट्रैंड होगा. एक सेंस होगा एंड एक पैसेंजर स्ट्रैंड होगा, तो ये उसको डिग्रेड करता है. तो ये रोल होता है AGO2 का. सो इसीलिए RISC कॉम्प्लेक्स का पार्ट कौन कौन सा होता है? Dicer1, TRBP एंड AGO2. अगर मैं शॉर्ट में RNA इंटरफेरेंसिंग का पाथवे बताऊं, सो व्हेन अ डबल स्ट्रैंडेड RNA और द shRNA क्या होता है? shRNA स्टैंड फॉर द शॉर्ट हेयरपिन RNA. शॉर्ट हेयरपिन, you can see in the picture, this is the short hairpin and this is the double stranded RNA. और इसी क्या करता है? इसी डाइसर जो है वो क्लीव करता है. डाइसर ने क्या किया? इसे क्लीव कर दिया स्मॉल फ्रैगमेंट्स में विच आर नोन एज दी स्मॉल इंटरफेरिंग RNA. अब ये स्मॉल इंटरफेरिंग RNA में क्लीव करता है या फिर
माइक्रो आरएनएज में क्लीव करता है, यानी कि जब ये क्लीव हुआ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए तो siRNA भी जनरेट हो सकता है एंड miRNA भी। सो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो siRNA जनरेट हुआ है या फिर माइक्रो आरएनए दैट इज miRNA, इट इज रिक्रूटेड बाय द रिस्क कॉम्प्लेक्स विच अनवाइंड्स एंड इनकॉर्पोरेट्स इनटू अ प्रोटीन आरएनए कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या करता है, रिस्क कॉम्प्लेक्स के साथ एसोसिएट होता है। यहाँ पे ये रिस्क कॉम्प्लेक्स बन गया जिसका हमने अभी फैक्टर देखा था क्वेश्चंस के थ्रू। अब रिस्क कॉम्प्लेक्स siRNA या फिर miRNA क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जो टारगेट है यानी कि मैसेंजर आरएनए है उससे बाइंड होते हैं। यानी ये रिस्क है, रिस्क कॉम्प्लेक्स, और हमारा जो फ्रैगमेंटेड miRNA या siRNA था वो क्या होता है, वो बाइंड होता है किससे, हमारे टारगेट mRNA से, टारगेट mRNA, और वो भी कैसे mRNA से, कॉम्प्लीमेंट्री। जैसा कि मैंने फंक्शन में बताया था, siRNA क्या करता है, अपने से कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वाले mRNA से बाइंड होता है एंड देन it is cleaved in a specific site and then degraded in the cell, therefore disrupting the whole protein synthesis pathway of the targeted gene। and यहाँ पे क्या हो रहा है, silencing हो जा रहा है and therefore जो gene expression है उस particular ये वाले जो mRNA का वो क्या हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है and therefore वो gene जो है वो express नहीं हो पाता। so this is the summary of the whole process RNA interferencing का, कि क्या क्या चीज़ें RNA इंटरफेरेंसिंग में होती हैं। अगर आपको अच्छे से जो मैंने अभी समझाया RNA इंटरफेरेंसिंग पाथवे अगर आपको समझ में आया है, सो आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस क्वेश्चन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप लिख के रख लीजिए कि इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं, सिमिलर वर्डिंग्स को थोड़ा चेंज करके, एंड इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा ही, हर बार आता है। डी सेक्शन में आए या फिर मोस्ट प्रोबेबली ये सी सेक्शन में आ सकता है बिकॉज ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है, लंबा क्वेश्चन होता है और थोड़ा सा सोचना पड़ता है। सो क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन द पर्पसेस ऑफ टू आरएनए इंटरफेरेंसिंग पाथवे, यानी miRNA के थ्रू जो होता है और siRNA के थ्रू यानी स्मॉल इंटरफेरिंग RNA के थ्रू और माइक्रो RNAs के थ्रू जो होता है, उनमें क्लियर कट डिस्टिंक्शन क्या होता है वो आपको बताना है। सो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं एंड डायरेक्टली हम आंसर पे जाते हैं, आंसर के थ्रू समझेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज siRNA mediated gene silencing represents a cell defense mechanism against exogenous double stranded RNA। आपको हमेशा एक कीवर्ड याद रखना है, जो siRNA है it is activated when an exogenous double stranded RNA is into consideration, यानी ये एक्टिव होता है अगेंस्ट द एक्सोजीनस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के थ्रू, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन के थ्रू हो या ट्रांसफेक्शन के थ्रू इंट्रोड्यूस कराया गया हो। बट द miRNA दैट इज़ द माइक्रो आरएनएज, सो जो जीन साइलेंसिंग या जो आरएनए इंटरफेरेंसिंग पाथवे जो miRNA के थ्रू किया जाता है, दैट इज़ एन इंटीग्रल जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन प्रोसेस। ये हमारी बॉडी का ही इंटीग्रल प्रोसेस होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि बाहर का कोई डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आ रहा है तब जाके इसे एक्टिव होना है। इट इज़ द नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी फॉर द जीन एक्सप्रेशन और द जीन रेगुलेशन प्रोसेस इन आवर बॉडी। की पॉइंट्स देख लेते हैं। सो अगर हम लोग बात करें जीन एक्सप्रेशन की, तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि जो सक्सेस है कि जीन रेगुलेशन को अगर हमें सक्सेसफुल बनाना है, हमें रेगुलेट करना है प्रॉपरली, जीन को एक्सप्रेस करवाना है या फिर एक्सप्रेस नहीं कराना है। इन शॉर्ट, इफ़ अ जीन हैज़ टू बी ऑफ और स्विच्ड ऑन, देन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द करेक्ट पाथवे इज़ वेरी मच मैंडेटरी। यानी स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए के थ्रू कर रहे हैं या फिर miRNA के थ्रू कर रहे हैं, सो उसका जो सक्सेस रेट है वो उसी पे डिपेंड करता है। सो जो siRNA मीडिएटेड जीन साइलेंसिंग होता है, इट रिप्रेजेंट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम फॉरेन बॉडीज, वेयरएज जो miRNA साइलेंसिंग होता है वो इंटीग्रल जीन एक्सप्रेशन होता है। प्लीज़ इसे लिख के रख लीजिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल आएगा एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों एंड आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊं, सो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू वॉच द फुल वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।